Good morning, dear students. How are you all? I hope all are well, staying safe at home and doing their all homeworks and completing their copies. Okay. So I hope you all are studying very well for your exams. Now your exams are coming. So I want everyone to do the revisions and learn all the lessons. Okay. Complete your copies. You know. So now we are moving to the next topic of the same lesson. In previous class we have completed our lesson up to page number 42, right? And the lesson was lesson 6, Introduction to Paint. Okay? So I am writing here the lesson number and the lesson name. Lesson 6, Introduction to Paint. Okay? So, in this lesson, in previous class, we have studied what is paint, how the tools are given, what are the uses of the tools, how to start paint program, also how does the window looks like and where we can find the paint app, also the tools and their uses and their how they look in our book, है ना? So ये सारे patterns हमने previous class में complete किए थे. Now moving on to the next topic, that is using tools of paint to draw a picture. अब पेंट में आपको जो टूल्स अवेलेबल है उसे कैसे यूज करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट रीड करने वाले हैं टॉपिक. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Using tools of paint to draw a picture. All of you look into your book on page number 43 and keep your finger where ma'am is reading. Okay, so the first topic is rectangle tool. What is it? Rectangle tool. Rectangle tool. How does it look like this? है ना, ऐसा दिखेगा आपको. एक बॉक्स के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ, ये आपका टूल होगा. ओके, सो to draw a rectangle we use this tool. To draw a rectangle we use this tool. Follow these steps. अब हमें क्या बोला है कि हमें ये steps follow करने हैं जो आपके बुक में लिखे हुए हैं और इस तरह से आप rectangle tool को use करते हो. Okay, so look into your book everyone. Here are some steps given and how your rectangle will look on your window page. It is given, है ना? So I am reading now. Look into your book everyone. Take the mouse arrow to the rectangle tool. Click on it and go to the drawing area. Click and drag the mouse to draw. Release the mouse button when a rectangle is drawn. अब आपको करना क्या है? आपको माउस और एरो को लेकर चलना है और रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, राइट? उसके बाद क्लिक ऑन इट एंड गो टू द ड्राइंग एरिया. उसके बाद आपको ड्राइंग एरिया जो ब्लैंक स्पेस दिया रहता है, व्हाइट कलर का आपको जो पेज दिखेगा पेंट खोलने के बाद, वहां ले जाके क्लिक करना है और ड्रैग करना है माउस को. और तब तक ड्रैग करना है जब तक आपको जितना साइज चाहिए आपके रेक्टेंगल का उतना नहीं आ जाता. ठीक है, तब तक क्या आप ड्रैग करोगे तो आपका साइज जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करोगे वैसे वैसे आपका रेक्टेंगल का साइज बड़ा होता जाएगा. Okay, if you want a small one, drag it a little bit, or if you want a big rectangle, then drag it to the bottom of the screen. Okay, and then you will see your rectangle is drawn on the page. Then release the mouse button when a rectangle is drawn. और जैसे ही आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से जितना बड़ा चाहिएगा या छोटा चाहिएगा, जैसे साइज में आपको चाहिएगा उस साइज में आपका रेक्टेंगल बन जाए, तुरंत माउस का बटन रिलीज कर देना है आपको. इज दैट क्लियर एवरीवन? करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको जो टूल बार दिया रहेगा साइड में, उसमें ऐसा एक दिखेगा आपको रेक्टेंगल, है ना? आपको उसको सेलेक्ट करना है. वहां से जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद आपको माउस और कर्सर डायरेक्टली कहाँ लाना है, आपका जो ब्लैंक स्पेस दिया रहेगा दैट इज ड्राइंग एरिया, वहां लेकर आना है. उसके बाद क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है, और जितना आप ड्रैग दूर करोगे उतना रेक्टेंगल का साइज बढ़ेगा. ओके, और जब आपके प्रॉपर साइज में आ जाए आपका रेक्टेंगल, आप अपना माउस बटन रिलीज कर सकते हो. इज दैट क्लियर एवरीवन? What you have to do is go to the toolbar and select the rectangle shape and then click on it. Once you select the shape, come back to the drawing area and then again click on the left mouse button and drag the mouse, and how much you drag, no, that much your rectangle size will increase.
So if you want a small rectangle, don't drag it so long, just drag it a little bit and you will get the perfect size. Once you get your perfect size, you can release the mouse button. Is that clear, everyone? Yes. Now the next is given a note. To draw a perfect square, just keep pressing the shift key on the keyboard while dragging the mouse. अब वहीं जब आप ये शेप पुल करते हो और ड्रैग करते हो माउस को, अगर आप उस वक्त शिफ्ट बटन को भी प्रेस करके रखते हो तो आपको एक परफेक्ट शेप मिलेगा, a neat and clean rectangle or a square. Okay, same you have to do with the other tools also. If you are drawing with your line tool, if you are selecting line tool, once you start dragging your mouse, no, along with that press the key shift key, right? And once you complete drawing the line, you can release both the buttons, that is the shift button and the mouse button. जब आप लाइन टूल यूज करके लाइन बना रहे हो या स्क्वायर बना रहे हो, उस वक्त भी आप अगर माउस को ड्रैग करने के साथ शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हो तो आपका जो लाइन है परफेक्ट स्ट्रेट बनेगा विदाउट एनी zigzag लाइंस, है ना? इट विल लुक नीट एंड क्लीन. और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए आप शिफ्ट बटन और माउस बटन दोनों रिलीज कर सकते हो. ओके, यस. द नेक्स्ट इज राउंड रेक्टेंगल टूल. आपको सेम प्रोसेस करना होता है राउंड रेक्टेंगल टूल के साथ भी. This tool is similar to the rectangle tool, only the corners of the rectangle drawn on the screen are round. अब क्या होता है, आपकी जो रेक्टेंगल शेप है वो ऐसा दिखता है और जो राउंड शेप है वो ऐसा दिखता है, बस ये जो कॉर्नर्स हैं वो ऐसे नहीं होंगे शार्प, दे विल बी राउंड, राइट? सो सेम चीज आपको राउंडेड रेक्टेंगल, सॉरी ये नहीं है, rounded rectangle tool है, sorry, next one is the rounded rectangle tool in which the edges will not be like this. The edges are sharp here, but जब round rectangular tool बनाते हो, rectangular tool देखते हो आप, तो आपका tool थोड़ा सा यहाँ से ऐसे घुमा हुआ होता है, like this. It will not look this sharp, है ना? ऐसे sharp नहीं दिखेगा वो, बस ऐसे घुमा हुआ साइड से नुकीला नहीं होगा, राउंड शेप होगा. ओके, सो ये जब आप बनाते हो तो इसमें भी सेम प्रोसेस ही करना है आपको, बिल्कुल सेम, ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज ओवल टूल. टू ड्रॉ एन ओवल फॉलो दीज स्टेप्स. अब जब आपको ओवल टूल मिलता है तो उसमें आप क्या करते हो? टेक द माउस एरो टू द ओवल टूल, click on it and go to the drawing area, click and drag the mouse to draw, release the mouse button when an oval is drawn. सेम प्रोसेस आपको ओवल टूल के भी साथ करना है. आप जाते हो, आपके टूल बार में आप देखोगे ऐसे बॉक्स के अंदर ओवल टूल बना होगा, ठीक है? कुछ ऐसा दिखेगा वो, ठीक है? इसको सेलेक्ट किया आपने, आप वही सेम चीज करोगे. You will take your mouse arrow to the toolbar and select the oval tool, and then you will come back to the working area. That is, your work area is your draw area, है ना? Paint area where you will draw. Come back there and then again click on the left mouse button and pull your mouse to the bottom. That is, you will drag the mouse, right? And then you can see a perfect round shape on your screen. ओके, सेम प्रोसेस जैसे आपने रेक्टेंगल के लिए किया था वही चीज आपको ओवल के लिए भी करना है. आप इसे सेलेक्ट करते हो, आपके वर्क एरिया में आते हो और माउस को ड्रैग करते हो और आपका सर्कल शेप बन जाएगा ओवल टूल की हेल्प से. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस. नाउ द नेक्स्ट इज टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल. जस्ट कीप प्रेसिंग द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड व्हाइल ड्रैगिंग द माउस. अभी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल बनाने टाइम जब माउस को आप ड्रैग करोगे उसके साथ अगर शिफ्ट की को प्रेस करके रखोगे तो क्या होगा? परफेक्ट सर्कल बनेगा या परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा. वही चीज आपको ओवल टूल के साथ करना है, वही चीज आपको लाइन टूल के साथ भी करना है. तो उससे क्या होगा? आपकी जो एजेस है, लाइंस है, राउंडनेस है, ये सब क्या एकदम परफेक्ट शार्प बनेंगे. मतलब बिल्कुल भी ऐसा ब्लर टाइप या थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा. ओके, यस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन टूल. जैसे कि मैम ने भी आपको बताया, अ लाइन टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस. टू डू दिस फॉलो दीज स्टेप्स. अब आपको लाइन टूल क्यों यूज करते हो? आप स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए. तो जरूरी नहीं है रेक्टेंगल आप इसी से बना सकते हो, आप लाइंस यूज करके भी रेक्टेंगल बना सकते हो क्योंकि उसके लिए तो स्ट्रेट लाइंस चाहिए. सो सेलेक्ट द लाइन टूल, गो टू द ड्रॉइंग एरिया, क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ लाइंस. अगेन आपको सेम चीज करना है. आप टूल बार में जाओगे तो आपको ऐसे एक बॉक्स में ऐसा लाइन दिखेगा. आप इसको सेलेक्ट करोगे,
आपके वर्क एरिया पे आओगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड विल ड्रैग द माउस एंड देन यू विल सी देयर विल बी अ लॉन्ग लाइन, straight line will be drawn on your screen. Okay, and also when you are dragging your mouse, press the shift key along with that so that your line will look straight and neat. Okay, yes. Now turn the page and take out page number 44. On page number 44, the tool named Fill with Color tool is given and we'll see how to use this tool. अब fill with color कैसा दिखता है? That we'll see. Fill with color tool and that looks like this. Look like this, है ना? आपने देखा होगा ऐसा एक दिखता है टूल आपके टूल बार में जिसमें बकेट बना रहता है और उसमें से कलर गिर रहा होता है, राइट? सो आप कैसे इसको सेलेक्ट करोगे? अगेन यू हैव टू गो टू द टूल बार एंड यू हैव टू सेलेक्ट दिस, click on fill with color tool in the tools group. Select the color you want to fill from the color palette, then click inside the shape to fill it with color. The color will be filled in the object. अब suppose आपका वर्क एरिया ये है जहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है? और इसमें आपने एक रेक्टेंगल बनाया है और एक स्टार बनाया है, ओके? अब आपको क्या करना है? आपको इसमें कलर करना है. मुझे स्टार में येलो करना है और रेक्टेंगल में ग्रीन करना है, ओके? सो व्हाट विल आई डू? फर्स्ट आई गो टू द टूल बार एंड सेलेक्ट दी फिल विद कलर टूल, है ना? ये बकेट शेप टूल को हम सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद अगेन आई गो टू द कलर पैलेट. आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया रहता है कलर पैलेट, है ना, जिसमें कलर्स रहते हैं. अगेन आई गो देयर एंड देयर आर सो मेनी कलर्स, है ना? जैसे कॉलम्स और रोज बने हुए हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें. मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, okay? And then again I will come back to the work area where I have drawn a rectangle and a star and I want to color the rectangle green. So I'll click inside the rectangle and my rectangle will look green in color, है ना? rectangle में पूरा color हो जाएगा green color, okay? Then again I want to color it yellow, the star yellow. So मेरा टूल तो सेलेक्टेड है तो आई डोंट नीड टू गो बैक अगेन एंड अगेन क्लिक ऑन द फिल विद कलर टूल. सो मेरा टूल बार सेलेक्टेड है तो मैं उस पर जाके फिर से नहीं क्लिक करूंगी, मैं सीधे जाऊंगी कलर पैलेट और मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लिया. मुझे कौन सा कलर चाहिए था? येलो. आप कोई भी कलर कर सकते हो, आपको जो कलर करना है, ओके? सो मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट किया और मैं कहाँ आई? मैं स्टार के अंदर आई और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया. सो हियर इट इज, माई स्टार इज लुकिंग येलो नाउ, है ना? मैंने स्टार के अंदर येलो कलर कर दिया, ओके? So this is the way you have to use fill with color tool, okay? Now the next topic is eraser tool. अब eraser tool तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को अलग से बताने की ज़रूरत है. It's very easy. आप आपकी टूल बार में देखोगे ऐसा इरेजर बना होगा, है ना? इरेजर टूल आपने देखा होगा. अब आप उसको जैसे ही सेलेक्ट करते हो टूल बार में जाके वो सेलेक्ट हो जाता है. वो भी ऐसे ही एक बॉक्स के अंदर बना होगा. आप उसको सेलेक्ट करोगे और आप अपने वर्क एरिया में आके सिर्फ माउस को लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखे इस तरह से मूव करना है आपको. जैसे जैसे आप मूव करोगे आपका स्टार इरेज होता जाएगा, लेकिन आपको माउस का लेफ्ट बटन भी प्रेस करके रखना है, तभी ये रिमूव होगा, ओके? सो दिस वॉज योर इरेजर टूल. नाउ इरेजर क्या होता है ये पता है आप लोगों को? इरेजर मीन्स, हाँ, आप जो आपकी कॉपी में पेंसिल से लिखते हो गलत हो जाता है तो जिससे आप मिटाते हो वही हमारा इरेजर है और हमारे कंप्यूटर में भी है वो चीज़, ठीक है? यस. नाउ द नेक्स्ट टूल इज पेंसिल टूल. योर पेंसिल टूल विल लुक लाइक दिस. आपका एक बॉक्स बना होगा और उसके अंदर एक पेंसिल बना हुआ होगा, ठीक है? ये आपका पेंसिल टूल है. अब आप इसको भी ये चीज़ करना है आपको,
माउस लेके जाओगे टूल बार के पास, वहाँ पे आपका एरो आप किस पे रखोगे, पेंसिल टूल बार पे, उसको क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसके बाद वापस अपने वर्क एरिया में आओगे। उसके बाद जहाँ भी आपको जो चीज़ ड्रॉ करना है, सपोज मुझे क्लाउड्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, अपना माउस वर्क एरिया में लाऊंगी, एरो रखूंगी जहाँ पे मुझे क्लाउड बनाना है, उसके बाद मैं लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखूंगी और यहाँ से स्टार्ट करूंगी ऐसे 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 ऐसे। तो जैसे जैसे मैं माउस को घुमाऊंगी मेरा क्लाउड बनता जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगेन मुझे एक और बनाना है, मैंने एक और बना दिया। ओके, ऐसे ही आपको पेंसिल टूल यूज करना है। अब अगर फ्लावर बनाना है तो भी वही चीज करना है आपको, पेंसिल का माउस का लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। ओके, एंड देन लाइक दिस। ओके, so this way you have to use your pencil tool. Now, one activity time is given. Let us draw a hut step by step using rectangle tool, rounded rectangle tool, oval tool, line tool, pencil tool and fill with color tool. आपको ये सारे टूल्स यूज करके एक हट बनाना है और उसे कलर करना है। तो ये एक्टिविटी हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे कंप्यूटर में। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल सेंड इट टू यू हाउ टू ड्रॉ अ हाउस यूजिंग सम tools that we have learned in our lesson. ठीक है? So this we are leaving for next class and now moving on to the last topic, that is saving a picture in paint. पिक्चर को कैसे सेव करना है, तो पिक्चर को सेव करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे टू सेव योर वर्क इन पेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब आप जैसे आपने ये ड्रॉ कर लिया, आपका कंप्लीट हो गया, आप देखना आपकी स्क्रीन पे यहाँ ऊपर एक ऑप्शन रहता है फाइल का, उसमें ब्लू कलर का बटन बना रहता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नया बॉक्स खुलेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो क्लिक ऑन द पेंट बटन, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, टाइप द फाइल नेम इन द फाइल बॉक्स हट, क्लिक ऑन द सेव बटन। सिंपल चीज होती है बेटा, इसमें क्लिक करोगे, आपने जैसे ही देखा कि आपको बॉक्स ऑप्शन ओपन हुआ, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, फाइल, न्यू और सेव, ओपन, सेव एज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इसमें से आप क्या करोगे, सेव पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करोगे, सेव पे। एंड वंस यू क्लिक ऑन सेव यू विल कम बैक टू द सेम पार्ट, है ना, एंड न्यू डायलॉग बॉक्स विल ओपन। आपको जैसे ये एक बड़ा सा स्क्रीन दिखा था वैसे एक नया स्क्रीन दिखेगा, वो आपके बुक में दिखाया हुआ है, ये देखो इस तरह से, है ना। और यहाँ पे फिर पूछेंगे आपको कि आपको किस नाम से सेव करना है, क्या डालना है, क्या करना है, सारे ऑप्शंस पूछेंगे। तो आप क्या करोगे, आप अपने फाइल नेम का नेमिंग करोगे और नेम क्या डालोगे, अब जैसे मैंने यहाँ क्लाउड्स बनाया तो मैं क्लाउड्स डाल दूंगी, आपने अगर हट बनाया है तो आप हट डाल दोगे, हट मीन्स हाउस स्मॉल, है ना। अगर आपने टेडी बनाया तो आप टेडी डाल दो, या जो भी नाम आपको देना है वो दे सकते हो, खुद के नाम से भी सेव कर सकते हो। सपोज राहुल नाम के लड़के ने बनाया है और मैं उसके नाम से सेव करूँ, तो मैं यहाँ पे जब नाम पूछेंगे वहाँ पे राहुल टाइप करूँगी कीबोर्ड को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं अपना नाम टाइप कर दूंगी, मुझे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे सेव का, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी तो मेरा पिक्चर सेव हो जाएगा जो मैंने ड्रॉ किया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, ये आप लोगों को मैं जब करके दिखाऊंगी तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी मैम ने थ्योरी पढ़ाया इसलिए मैम ने वो पार्ट नहीं बताया आपको, अब नेक्स्ट क्लास में मैं वही बताऊंगी आपको, ठीक है। Till that, read the lesson as far as I have taught and try to learn whatever I have told you today, है ना। Try to understand the tools. Those who are having laptops or computers at home, please do practice बेटा। और जिन बच्चों से अगर हट बनाना इजी है, जिन्हें पेंट यूज़ करना आता है, वो कर सकते हैं अपने घर पे, ओके। Rest of them wait for the next class. I will send you the video. Will learn how to do this, okay? Yes. Good day everyone.